اربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ 22 جون کے بعد جموں کشمیر میں مونسون کے دستک دینے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ 19 اپریل کے سانحے کے بعد سے رامبن قصبے میں پانی کی بحالی ہنوز باقی، لوگ پریشان، فنڈز کی کمی کا شاخسانہ۔ وادی کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی کمی، بعض علاقوں میں آبپاشی سہولیات متاثر رہنے سے کسان نالاں۔ محکمہ پی ڈی ڈی کے ملازمین سراپا احتجاج۔ محکمے میں آئے روز پیش آنے والے حادثات کی غیر جانبدارانہ جانچ کی جائے اور حفاظتی انتظامات کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ اور بھی کچھ موضوعات تھے۔ میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، جموں کشمیر میں درجہ حرارت گزشتہ 2 دن سے کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے اور گرمی میں بھی قدرے راحت ہے۔ وادی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران درجہ حرارت 7 سے 8 ڈگری تک زیادہ رہا، مگر اب اس میں قدرے بہتری آ چکی ہے اور اس وقت درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری ہی معمول سے زیادہ درج ہو رہا ہے۔ ادھر ملک کے مختلف حصوں میں مونسون دستک دے چکا ہے اور اگلے چند روز میں یہ جموں کشمیر میں بھی دستک دے گا، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی بارش کے چند ایک مرحلے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ 20 اور 21 جون کو چند علاقوں میں بارش کی گنجائش نظر آ رہی ہے، جبکہ 24 کے بعد چند روز تک مختلف علاقوں میں خاص طور سے جموں خطے میں درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ ابھی فی الحال 20 تک جو ہے موسم ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں، تھوڑا سا ہاٹ اینڈ ڈرائی۔ باقی 21 سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ تھوڑا سا رہے گا 21-22 کو، اور اس میں جو ہے کچھ جگہوں پہ انٹینس شاورز کے بھی چانسز ہیں، خاص کر جموں ریجن کے اندر، یہاں ویلی کے اندر بھی جو ہے تھوڑی سی بارشیں رہ سکتی ہیں 21-22 کو۔ اور پھر 23rd 24th کو جو ہے موسم ایک بار پھر تھوڑا سا ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں۔ ڈریپ اسپیل آف رین جو ہے خاص کر جموں ریجن کے اندر اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی 25 26 27 کے آس پاس ایک بار پھر جو ہے بارشوں کا ایک اسپیل پھر سے خاص کر جموں ریجن کے اندر اور بیشتر علاقوں میں خاص کر ویلی کے اندر بھی۔ تو جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ 21 سے جو ہے تھوڑا سا آپ کو مور اور لیس رہنے کے چانسز ہیں پورے جموں کشمیر کے اندر۔ مونسون کب دستک دے رہا ہے؟ مونسون کا دیکھو ابھی بارشیں تو شروع ہوں گے، تو یہ مونسون کا جو بارش ہے یہ بھی 1-2 دن اگر پرسسٹ کرتا ہے تو مونسون جو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں 21-22 کی جو بارشیں ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کس حساب سے بارشیں رہیں گی یہ جو آنے والی ہیں، تو اسی حساب سے ہم پھر ڈکلیئر کریں گے۔ باقی کچھ پارٹس آف راجستھان، سم پارٹس آف یو پی، بہار اور گجرات، ان سارے جگہوں پہ مانسون جو ہے پہنچ چکا ہے، دھیرے دھیرے دستک دے رہا ہے۔ تو کمنگ ڈیز میں خاص کر پہلے اتراکھنڈ، اس کے بعد ہماچل، پھر جموں کشمیر میں جو ہے انٹر کرتا ہے مانسون۔ تو دیکھتے ہیں کب ان پردیشوں میں مانسون جو ہے پہلے آن سیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے جموں کشمیر کے اندر بھی جو ہے آن سیٹ ہوگا اکارڈنگلی۔ لگ بھگ پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ سینچائی کے پانی کی کمی سے پریشان ہیں۔ بارہمولہ ضلع سے موصول اطلاعات کے مطابق پورا برن، ترکولبل، ہانجی ویرا پائن، متی پورا، سنگھ پورا اور دسلی پورا شامل ہیں۔ ان دیہاتوں اور دوسرے ملک علاقوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے آج سے 3 سال پہلے پریہاس پورا واٹر سپلائی اسکیم کی سنگ بنیاد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آن لائن ڈالی تھی، اور اس وقت اس اسکیم کو 1 سال کے اندر اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اسکیم پائی تکمیل کو نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے یہ 1 درجن دیہات پینے کے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ادھر محکمہ جل شکتی نے درنگ نالے سے پٹن تک پرانی بوسیدہ پائپوں کو تبدیل کرنے کے لیے ٹینڈر نکالے، مگر ہر بار اسے دوبارہ نئے سرے سے ٹینڈر نکالے جا رہے ہیں۔ اسٹرن انجینئر جل شکتی پٹن نے بتایا کہ ٹھیکیدار اس کام کے لیے ٹینڈر نہیں ڈال رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کام کے لیے بار بار دوبارہ ٹینڈر طلب کرنے پڑتے ہیں۔ درنگ سے پٹن تک جتنی بھی واٹر سپلائی اسکیموں میں پانی آ رہا ہے وہ پورا اس لیے نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ پائپیں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور جگہ جگہ پر لیک ہو رہی ہیں، جس سے پٹن کے اکثر علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے۔ ادھر رفیع آباد کے نچلے علاقوں میں بھی ان دنوں پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے، جن میں بہرام پورہ، درسو، مراجی گنڈ، لوگری پورہ، ٹھگ گنڈ، بابا گنڈ اور ریبن نوپورہ شامل ہیں۔ ادھر رفیع آباد ہائی لفٹ اریگیشن اسکیم میں بار بار موٹر جل جانے یا پھر بجلی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اس اسکیم پر آباد ہونے والی آبی زمین میں زمیندار پنیری نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج سے 10 روز پہلے بھی موٹر جل جانے کی وجہ سے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
कल दोपहर से 33 kV लाइन में फॉल्ट आने की वजह से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पिछले 24 घंटे से बंद पड़ी है। इस स्कीम से सैकड़ों कुनाल जमीन सैराब हुई है। इस वक्त इरिगेशन का सीजन पीक पर है और लोग पनीरी लगाने के लिए जमीनों को सैराब करने के इंतजार में है। इस सीजन में लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली बगैर किसी खलल के फराहम की जानी चाहिए। इसके बरक्स पिछले 15 रोज से बिजली की सप्लाई में जबरदस्त खलल देखने को आ रही है। मुतवातिर रफीआबाद हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम न चलने की वजह से अचबल, रेबन, ब्राट और दूसरे इलाके जबरदस्त मुतासर हुए हैं। इधर सोपोर, जंगेर में भी, आदिपोरा, शिवा और बुमई के इलाकों में भी इरिगेशन पानी की शदीद किल्लत होने की शिकायत मौसूल हो रही है। इधर पटन में भी किसानों को पनीरी लगाने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए पानी दस्तियाब नहीं है। इन इलाकों में मागरेपोरा, मार्कीपोरा, जंगम और मेन पटन शामिल हैं। आपने करामत कून की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान त्राल से मिली इत्तलात के मुताबिक पुंजू इलाके में अभी अराजी सूख जाने की वजह से मकामी किसानों में तशवीश है, क्योंकि मकामी नहर में पानी न आने से दांग की पनीरी सूख रही है। और मकामी लोगों के मुताबिक महकमा इरिगेशन मामले की हसासियत को समझने के बावजूद खामोश तमाशाई बना बैठा है। मकामी आबादी का कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के मद्देनजर किसान परेशान है, क्योंकि अगर बर वक्त सिंचाई का इंतजाम नहीं किया गया तो उनके खेत मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे। इस दौरान जिला अनंतनाग के पसमानदा गांव हापत, नाड़, शिमहाल में आज मकामी लोगों ने महकमा आपाशी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि इलाके में कायम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम गुज़श्ता 30 बरसों से नाकारा पड़ी है और आज तक इसके जरिए पानी फराहम नहीं हो पाया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि न सिर्फ पीने के पानी की शदीद किल्लत है, बल्कि खेतों और माल मवेशियों के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि महकमा इरिगेशन स्कीम की मौजूदगी का दावा करता है, लेकिन हकीकत में न कोई पानी पहुंचता है और न कोई दीगर सहूलियत दी जाती है। मुसीबत शाकल त्रावान आब सह पत निवान टिस अंदस पे शाकल वात जहर खेनस पेमित योर जमींदार तो वाड़ वाल तो नान गार तावनस मज खुदावन करीमा पाइप त्रायन ठेकेदारन अड़वस तन त्रायन अगर आड़स मज वाड़ मान पकि वो सान वाड़ सोन जिरात वो कुछ फान खुदावन करीमन पे गवर्नमेंट तक यह लिफ्टस थोक नार दिख लाजस रोपये तो वह ना आब त्रान। मेरा गुलाम मोहम्मद भट्ट बुल शुमारी रोनवर घर पे बनो यमो आज गई 3 वरी बन मगर तन रोज आब टोटल इरिगेशन वो चाहे नरेगा मज कम दोप 2.5 लक्ष लगे दोपक लिफ्ट कनाल ठीक कह तथ तुल मलबो सह मगर वनकस आब तम दपान है कुली हसा पकनान आब हमो पे त्रो कुली तन वुचन अत थोमुत पावर अलग अलग सह थोक यह गोड़े बाकी गाँव सतन वनकस दपान है मोटर गर्म ये मोटर गर्म कर बंद तोतन मगर फीस शाहिद अहमद गनई। हाँ तो सर आज ये लिफ्ट कनाल गए 3 वरी जमिक आब हरम आब मज रूद वूद पेवन सह खास मज त्रावन तुलान फोटो पे दपान दिव माली दिमो माली आबी सन थजवान वो सन बाग वो दवा बाग जमीन कनाल 2 हथ यह 5 गरन 10 वोन तुम गुड़िल पे बसान यप घर गरन 5-8 बाकी ना अमिक फायदा कहीं बंद कर ना ग माली छान कह योर दपान 3 वरियन दिव वनकस सोद खाश कर हंगत मंगस पे थमित कर हर वरी पोस कर कर जमीन वारान यप दिव तुम नजर ये फान कर मलबह खाड़न फी वरी वन लोग डोजर सोन खनित अत दोस खसान आब जमा सह ब्रो पकन पे मोटर चलान यह कुन अंदस वातन आब दोप पारस अगर तुम माली दिव तुम करो वारंट कर बंद दिव पोस अमिक 13 वरियन 14 वरियन गई तम पे डी साहबस गई गई और दुख आब करो कह दोप फंड से हको लगित पावर गई वफद इरिगेशन डिपार्टमेंटस पे गई डीसी साहब गई हर कह कौर फारवर्ड यो दरखास्त योर गौर योर किराय लगिस ₹1,000-2 दोस शाम आई बे घर तो कोई मुतालबह गो सोन तम दो पास लिहाजा कर आज वन आज ग पावरी आब कुन अंदस खसन मुलाजिम तम बोजन योर यप वन सोन आखिरी मुतालबह यह कि गुजारिश कर अमिक चीफ इंजीनियरस या असिस्टेंट सबस या डी सबस कि या तो करो तुम इंसाफ सान सन मुतालबह पूरा
नत करो कम नत करो यह ब्लॉक गमच ब्लॉक करो वारे ब्लॉक थन बंद अस रोज परेशानी अमिच कहे आब यह या बाकी चीज बर रोजान अकिस धोखस अकिस अंदर ये जन हरम आब सह जमीन पलजन तथ लगो PHE वालों ब्या प्लान तपर नेक बड़ बड़ तम प्रोजेक्ट बनत आब वात साली की कपर तक सह कोर तपर तूर रेफर सपर वनस हर अंद नार शिमाल के लोगों का एहतजाज। इस दौरान मेंबर असेंबली पहलगाम अल्ताफ कुलू ने मामले को संजीदगी से लेते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि यह मामला मुतल्लिकीन के साथ उठाया जाएगा और इसे कम से कम वक्त में हल कराने की कोशिश की जाएगी। अब एक और मौजू, गलमानपुरा हल्का शेरवनी टंगमर्ग तहसील दमाल हाजीपुरा से एक वफद शेरबीन आकर बताया कि गलमानपुरा में 1961 में एक प्राइमरी स्कूल कायम किया गया है जिसमें बच्चों की कसीर तादाद जेर तालीम है। इस स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं जबकि खेलकूद के लिए कोई सहन या ग्राउंड नहीं है और इसके नतीजे में बच्चे वर्जिश से महरूम हो जाते हैं और उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो रही है। गलवानपुरा तालीमी जोन दमान हाजीपुरा के बाशिंदों ने महकमा तालीम से मुतालबा किया कि स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे मिडिल किया जाए और साथ ही मुनासिब जगह पर इमारत और ग्राउंड की तामीर कराई जाए ताकि गाँव के गरीब बच्चों को बेहतर माहौल और सहूलियात दस्तियाब हो सके। सामीन कस्बा किश्तवाड़ और इसके मुल्का इलाका जात बिलखुसूस छिछिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कहा कि गर्मी के इन दिनों में उन्हें शदीद पानी की किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि पानी की अदम फराहमी की वजह से उन्हें मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना है। मुतल्लिका लोगों ने PHE महकमे से अपील की इस मामले में मुदाखलत की जाए। शेरबीन आप पर खैर मकदम। सामीन वादी कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज शोर आफाक जिले डल में एक शिकारा रैली निकाली। रैली की क़यादत पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान और बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे जो सयाह हमारे मेहमान हैं, कश्मीर हमारी जान है जैसे नारे लगा रहे थे। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने शिकारा रैली का एहतमाम किया है और इसका मकसद मुल्क में लोगों को ये पैगाम भेजना है कि कश्मीर आपके इंतजार में है और महफूज है, आप बड़ी तादाद में यहाँ आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर उतना ही महफूज है जितना मुल्क का कोई दूसरा इलाका है। सामीन साहित्य अकादमी ने बच्चों के अदब में नुमाया खिदमात पर 25 मुसन्निफीन को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से नवाजने का ऐलान किया है। इनमें कश्मीरी जबान के लिए मरूफ अदीब इजहार मुबशिर को उनकी किताब शुर्त चुर्गिश को यह अवार्ड दिया गया है। अवार्ड में तांबे का तमगा और 50,000 रुपए नकद शामिल हैं। इस दौरान इजहार मुबशिर को मुख्तलिफ अदबी शख्सियात और अंजुमनों ने इस एजाज पर मुबारकबाद दी है। पुलवामा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला दफ्तर में एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि इस कन्वेंशन का एहतमाम साबिक वजीर खलील मोहम्मद बंद ने किया था। कन्वेंशन में सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, MLA राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर, MLA पामपुर हसनैन मसूदी, सईद तौकीर अहमद, सईद बारी अंद्राबी और दीगर ब्लॉक और जिला अहदेदारान शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के साथ आज भी सोतेला सलूक रखा जा रहा है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में खाली 4 राज्यसभा और 2 असेंबली सीटों के लिए भी चुनाव मुनक्कद नहीं किए जा रहे हैं। सामीन महकमा फिशरीज गांधरबल ने तहसील दफ्तर वाकुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में माहीगीरों के लिए एक तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और हाजरीन को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज गांधरबल मोहम्मद असलम भट्ट ने महकमे की स्कीमों का खाका पेश किया, जबकि माहीगीरों की एक बड़ी तादाद ने वर्कशॉप में शिरकत की और जानकारी हासिल की। मोहम्मद असलम भट्ट ने हाजरीन का बड़ी तादाद में शामिल होने पर शुक्रिया अदा किया। समीन ईरान इसराइल जंग के बाद से ईरान में जेर तालीम बच्चों को वहां से बहिफाजत निकालने का काम जारी है। तमाम बच्चों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि 100 के करीब तलबा आर्मीनिया पहुंच चुके हैं जहां से उनकी वतन वापसी हो रही है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के सभी तलबा बसलामत हैं और उन्हें हर तरह की मदद और मावनत दी जा रही है। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी कि पदगामपुरा वंतीपुरा में मकामी लोगों ने डंपिंग साइट को लेकर जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि साइट की वजह से इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है और उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उन्हें इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता रोज आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए और इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि डंपिंग साइट को फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए।
बच्चे बुजुर्ग मेरे बहने भाई जख्मी हो गए। 2 दिन से कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी तस से मस नहीं हो रहा है। वजारत से म्युनिसिपलिटी अवंतीपोरा को वारन करता हूँ, अगर विद इन 7 डेज इसका मसला हल नहीं होगा तो हम रोडों पे आएंगे। तो शायद हम इतने देर तक एहतजाज करेंगे जब तक ये डस्टबिन यहाँ से ना उठाया जाए। पदगामपोरा अवंतीपोरा के लोगों का डंपिंग साइट को लेकर एहतजाज। समीन इस साल 19 अप्रैल को रामबन में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिराने से जहां कौमी शहरा को काफी नुकसान पहुंचा था, वहीं रामबन कस्बे में जमीन धंसने के साथ साथ मकानों, तिजारती मराकज और दीगर इमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचा। कस्बे में बिजली और पानी की स्कीमों और लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन मकामी लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अभी तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है, क्योंकि मुतल्लिका डिवीजन के पास मरम्मत के लिए रुकमात ही दस्तयाब नहीं है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। 19 और 20 अप्रैल को कस्बा रामबन के इलाकों में तबाहकुन सैलाबी रेलों ने लोगों की इमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया था और रास्ते, गलियां, सड़कें, बिजली और पानी का निजाम भी सैलाबी रेलों की जद में आने से बुरी तरह मुतासिर हो गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ा कस्बा रामबन में सैलाब से हुई तबाही को अब 2 महीने का अरसा होने को आया है, लेकिन जरूरी सर्विसेज के जुमरे में शामिल PHE का महकमा कस्बा रामबन में पीने के पानी की सप्लाईज को फंड्स की कमी की वजह से अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर पाया है और शदीद गर्मी के इन अयाम में कई वार्डों को आरजी और मुतबादिल दिनों में पानी फराहम किए जाने की वजह से पीने के पानी के बहरान का सामना है और मर्दों, खवातीन और बच्चों को घरों में इस्तेमाल के लिए पानी का हुसूल दुश्वार हो गया है। 20 अप्रैल के तबाहकुन सैलाब की जद में आए कस्बा रामबन के अपर बाजार, बावली बाजार, बस स्टैंड, बागवान महला, मस्जिद मार्केट, कोफ बाग, सुनाड़ी महला, पटियारी महला दूसरा, हायर सेकेंडरी रामबन और हाई स्कूल गर्ल्स के आसपास के महलों को शदीद नुकसान पहुंचा था और यहां आबाद शहरियों ने शहरबीन को बताया कि सैलाब से हुई तबाही के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला 2 बार रामबन आए थे, जबकि नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदर सत शर्मा और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी रामबन का दौरा करके मुतासरा लोगों को राहत रसानी की पूरी यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन 2 महीने बाद भी जहां सैकड़ों मुतासरीन सरकार की खुसूसी पैकेज के मुंतजिर हैं, वहीं इस तबाही के बाद भी पीने के पानी की बहाली के लिए सरकार की तरफ से फंड्स दस्तयाब न करने की बात समझ से बालातर है। लोगों को गिला है कि म्युनिसिपल कौंसिल रामबन में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की वजह से कस्बा रामबन में बेढंगे तरीके से तामीरात की इजाजत देकर ऊपर पहाड़ियों से आने वाले नालों को तजावुज किया गया है और 20 अप्रैल के बेलगाम सैलाबी रेलों ने रास्ते न पाकर लोगों के घरों और दीगर कारोबारी ढांचों को ही मलबे के नीचे दबा दिया था और मलबे की वजह से पाइप लाइनों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। यहाँ पे हमने PHE डिपार्टमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो फंड्स अगर नहीं है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया, उसके बाद 2 टाइम जो है ऑनरेबल CM ने विज़िट किया, उसके बाद MP जो हमारे हैं उन्होंने विज़िट किया, अपोजिशन लीडर जो है सुनील शर्मा ने विज़िट किया। फंड कहाँ से रिलीज़ होने हैं? ऊपर से ही होने हैं ना, उनसे ही होने हैं। अब यहाँ पे अगर फंड नहीं है तो पब्लिक का क्या फॉल्ट है? पब्लिक जो पानी ले रही है वो मंदिर से या दूसरे, आपने खुद ही देखा वहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं। रात के 10-10, 12-12 बजे तक पानी जो है वो पाइपें लगा के अपने जो सप्लाई पूरी करते हैं। तो ये कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज है, डिज़ास्टर के लिए तो अलग से फंड्स होता है। अब इनकी प्रॉब्लम हमें नहीं समझ आ रही है कि फंड्स कहाँ से रिलीज़ होने हैं और किसने करने हैं। ये तो पब्लिक ने नहीं करने हैं ना। फिर कोई भी नहीं आता। CM साहब आए तो वो भी चक्कर मार के चला गया, उसने नहीं देखा पानी है कि नहीं है। फिर वो PHE वाला कोई नहीं आता, डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट अफसर कोई नहीं आता, PHE के मुलाजिम कोई नहीं आते। 2 महीने से पानी कोई नहीं। हम नाले से पानी लाते हैं वो भी सूख गया। फ्लड को आए हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। आप पाइपलाइन देख सकते हैं सारी टूटी हुई है। इतनी गर्मी में इतने लोगों को पानी ऐसे कितना मिल जाएगा? चीज के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको लेना चाहिए ना, कुछ स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो आई थिंक बहुत अच्छा फंड एक आया है यहाँ पे। अगर ये चीज कहीं और होती तो अब तक ये काम हो जाना चाहिए था, बट अभी नहीं हुआ। कस्बा रामबन में पीने के पानी की बहाली के हवाले से बात करने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीजन रामबन हरीश शर्मा ने शहरबीन को बताया कि कस्बा रामबन में वाटर सप्लाई स्कीमों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के बाद पीने के पानी की मुकम्मल बहाली का काम अभी भी जारी है और वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 को छोड़कर
कस्बा रामन के बेशतर इलाकों में पीने के पानी की आर्जी सप्लाईज को बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ बहाली का काम आगे बढ़ रहा है और हर रोज कुछ लाइनों और गलियों को बहाल किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मजीद कहा कि महकमा PHE रामबन पर काम पर लगाए गए मजदूरों की बाहरी रुकूमत वाजिबुल अदा है और अभी तक इसके लिए फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं। ताहम नुकसानात का तखमीना लगाकर एक मंसूबा डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से मंजूर किया गया है और उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज में फंड्स दस्तयाब हो जाएंगे, जिससे वाटर सप्लाई स्कीमों की मुकम्मल बहाली में तेजी आएगी। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इधर मुश्ताक देव ने खबर दी है कि गुंदो बलेसा के 2 मजदूर केदारनाथ में काम करने के दौरान पहाड़ से आ रहे पत्थरों और मलबे की जद में आकर हलाक हुए। एक की शिनाख्त शंकर कुमार के तौर हुई है, जबकि 2 मजदूर जेर इलाज हैं। सामीन KPDCL में काम कर रहे मुलाजमीन इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि महकमे में आए रोज हादसा रोनुमा होते हैं, जिस दौरान मुलाजमीन और आर्जी मुलाजमीन की जान खतरे में पड़ जाती है और कई लोग इन हादसा में अज़ां या फिर माजूर हो जाते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि महकमे में जो हिफाजती निज़ाम राइज है वो इंतहाई नाकिस है और ज़रूरी साजो सामान की भी किल्लत है, जबकि आज तक जो हादसा रोनुमा हुए हैं उनकी तहकीकाती रिपोर्ट को कभी जारी नहीं किया गया है और मामला को छुपाया जाता है। मुलाजमीन ने वज़ीर आला, जिनके पास महकमा बिजली का भी चार्ज है, से अपील की है कि महकमे में हुए हादसात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुतल्लिक़ अफसरान पर जिम्मेदारी आयद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हिफाजती निज़ाम का असर नो जायजा लिया जाए। आए दिन हादसात होते हैं महकमे में, उसके खिलाफ इंसानी जानें ज़ाया होती है, लेकिन कोसानी हाल कहीं पर नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कहीं लोग इन हादसात का शिकार हो गए, अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा उनको, और कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ के अज़ा काट लिए गए। हम आपसे कहते हैं, हमारा एक सवाल है, 3 मई को जो एक्सीडेंट डल में हुआ, वहां पर आपने एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ आपने ये वादा दिया कि इंसाफ होगा। उसके बारे में आपने सिर्फ इतना किया, कमेटी रिपोर्ट दी और ऐसा तासुर आपने पेश किया कि ये किसी को नहीं हो, जो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी पे फिक्स नहीं हुई, बल्कि आपने क्या किया, एक रूटीन ट्रांसफर कर दी। आपने कहा मसला सारा गोल हो गया। क्या आपने सोचा है कि उनके अयाल क्या करते होंगे जिनके अजीज अकारीब इन हादसात का शिकार हो गए? वो अपनी जिंदगी बसर कैसे करेंगे? महकमा बिजली में बेवाओं का एक बड़ा झुंड खड़ा हो गया, एक यतीमों का बड़ा झुंड खड़ा हो गया। क्या आपको कहीं जवाब नहीं देना पड़ेगा? जितने लोग आज तक इन हादसात में मर गए, क्या एक जगह भी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की और ये बता दिया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था? लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा, जो भी रिपोर्ट आपने बनाए, हमें उनसे कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि वो बायसड है। बायसड इसलिए है कि किसी पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई और किसी को सजा नहीं मिली। कल की ही बात हम आपसे करेंगे, बड़गाम में जो हादसा पेश आया, 2 एम्प्लॉइज हमारे उसमें झुलस गए और आपने एक स्टेटमेंट देकर गुमराह कराने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम कहेंगे सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी आगाही के लिए एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। वीडियो सब लोगों ने देखा, वीडियो में सब ने देखा कि जो लोग झुलस गए हैं बाल्टी लेकर, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। क्या ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में आता है कहीं पर? क्या वहां आपने कभी सेफ्टी ऑडिट किया है? क्या आपके पास कागज मौजूद है? हम कहते हैं कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां पहले फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था। फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखा, न फायर एक्सटिंग्विशर पे रिफिल का डेट है, न फायर एक्सटिंग्विशर पे कहीं पर एक्सपायरी का डेट है, और दोनों फायर एक्सटिंग्विशर खाली, दोनों फायर एक्सटिंग्विशर खाली है। क्या कहेंगे आप? फायर एक्सटिंग्विशर खाली क्यों है? और आप लिख रहे हैं सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? हाँ, इतना हो गया। अगर उनकी इंजरीज है 20% थी, ये पहली खामी थी। दूसरी खामियां हम आपसे आप शेयर नहीं करेंगे, हम आपसे नहीं बोलेंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। 100 सवाल उठते हैं वहां की सेफ्टी पर, जो सेफ्टी वहां नहीं थी। क्या ये जो काम कर रहे थे इनके पास प्रोटेक्टिव गियर था? नहीं था। KPDCL जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की वज़ीर आला से फौरी मुदाखलत की अपील। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह।